digital and media? Well, he's from Mumbai. He specializes in branding, digital marketing, and website making. Please welcome with us Tarun Makhija. Hello guys, hello, how are you doing? All great. Thank you for a lovely introduction, Prachi. And just to add on to that, all of the hard work is my team's, not mine. So all the credit to the team. So we have about what 54 people today, including me, and about close to 30 odd people have no videos. I would love to see some amazing people over here, guys. This is the beauty of technology. We are here. Everybody is here. From Bangalore, Hyderabad, Mumbai. There are singers, there are dancers, there are event company owners. All of you are amazing entrepreneurs, and I'm sure you all have been doing this since almost 2 to 3 months now, and I'm sure you love what you do. That's why you're here today. So, can I see? Yeah, I guess a lot of people have their videos on now. Thank you for being such a cooperative audience, guys. A lot of love to all of you. All right, great. So I'll just take about 20-25 minutes from Prachi because Prachi was doing a fabulous job. I would firstly like to thank Sitanshu for calling me over here, making me meet IEPA, all of you amazing people. And secondly, I would like to thank Nishi and Mr. Sanjeev as well, who thought that I could be a part of this and I could add some value to each of your lives. Okay, इसके पहले कि मेरी प्रेजेंटेशन शुरू हो जाए, मुझे सब लोग फटाफट एक जूम के चैट में देंगे यस यस अगर वो एक्साइटेड हैं कुछ नया सीखने के लिए. क्विकली मैं देख रहा हूँ चैट को, फटाफट थोड़ा फिंगर्स को एक्सरसाइज देंगे हम लोग, फटाफट फटाफट. सिर्फ I दीपक, believe that people cannot Chat is only for the host. only for the core team members, but we can definitely do it virtually. You all can all give your thumbs up to them. Come on. okay, can you give me like a thumbs up please? Yeah, thumbs up, lots of thumbs ups coming up. Okay, so all of you are excited to learn something new. Arun, we have got more than 25 yeses. We've got more than 35 faces. 25 yeses. Oh wow, that's even better. So I guess everybody is very excited today and everybody is in the zone of learning something new. किसी को भी कितने देर से हम लोग स्क्रीन के सामने हैं? 4 बजे से शायद, राइट? 4 बजे से है ना? ठीक है. 3:30. 3:30. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ करेंगे मेरे साथ, ठीक है? हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम सब हमारे जो लोग चश्मे पहने हैं चश्मे उतार देंगे प्लीज़ 2 मिनट के लिए. मनीष जी, केतन जी, नीरज, Mr. Jaydev, Rakesh, and whoever else I can see from the screen. ठीक है, चश्मे निकल गए. देखो मेरा एजेंडा आपको ब्लाइंड करने का नहीं है, ठीक है? सबसे पहले हम लोग करेंगे मेरे साथ एक छोटी सी एक्सरसाइज. हम लोग करेंगे नेक रोटेशन, ठीक है? सिर्फ लेफ्ट में देखेंगे और राइट में देखेंगे. किसी भी गर्दन टूट गई तो मेरे को लोग मारेंगे गाइस, तोड़ना मत, आराम से, ठीक है? लेट्स गो लेफ्ट राइट. 1 2 1 2 1 2 1 2. लास्ट वन, लास्ट. ओके ग्रेट. चलो सब अब मुझे देखेंगे, ठीक है? सुपर. अभी नेक्स्ट चीज़ हम लोग करेंगे, हम लोग सिर्फ 5 डीप ब्रेथ्स लेंगे और 5 छोड़ देंगे, ठीक है? मेरे साथ करेंगे सब लोग. अप फॉर इट एवरीबॉडी? ओके ग्रेट. चलो टेक अ डीप ब्रेथ इन, ब्रीथ आउट, टेक अनदर डीप ब्रेथ इन, breathe out, take another deep breath in with a smile on your face, breathe out, take another deep breath in with a bigger smile on your face and breathe out, take one last deep breath in and breathe out and keep breathing. Okay, last हम सब ने बचपन में किया होगा ना असेंबली के बाद. चलो सब लोग अपने हैंड्स रब करेंगे, फटाफट जोर से रब करेंगे, जोर से करेंगे सब लोग मेरे साथ. चलो फाइनली हम लोग इनको 10 सेकंड के लिए हमारी आंखों पे प्लेस कर देंगे. चलो सुपर. तो मैं आप सबको बता दूं कि मैं एक योगा ट्रेनर या मैं कोई फिजिकल ट्रेनर नहीं हूँ, ठीक है? जैसा इंट्रोडक्शन मेरा प्राची ने दिया है मैं वही करता हूँ. Just wanted to make sure that all of you are a little more energized and a little more pumped up before the session. So, जो भी लोग फ़ोन पे देख रहे हैं या कुछ फ़ोन पे इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, कुछ क्लाइंट को कुछ आ रहा है नहीं जा रहा है, आधा घंटा से मुझे दे दो, उसके बाद आप यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट.
ठीक है, चलो सुपर। ओके, आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन फॉर ऑल ऑफ यू। 1 second, yes, okay, great. Is the screen visible to you? Yeah, Prachi gave me a thumbs up. Okay, great. ओके, तो हम सब सारे के सारे जितने भी लोग हैं, सबसे पहले मुझे बता देंगे सब लोग कि क्या हम सब लोग कंफर्टेबल हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में? थम्स अप, या कंफर्टेबल है? ओके ग्रेट। कोई भी अनकंफर्टेबल हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, आई विल ट्राई टू रिपीट इट फॉर यू, हिंदी में या फिर इंग्लिश में, जो भी मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ, आई डू दैट। ओके ओके ग्रेट। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग फॉर इवेंट कंपनीज, कितने लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ इसके बारे में पढ़ा होगा या कुछ सुना होगा? डिजिटल मार्केटिंग तो हर इंसान ने आज की तारीख में सुना ही है एक ना एक बार। तो क्विकली मुझे कोई भी बताएगा कि उनके हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? कोई भी फटाफट अनम्यूट करके। Making your brand visible to a bigger audience through all the digital platforms you can, with a wide variety of reach to customer through videos, photographs and creatives. परफेक्ट, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग आज और सीखने वाले हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग इज़ बेसिकली लाइक यू मेंशन, इट्स मार्केटिंग अ ब्रांड ऑनलाइन। इट कैन बी एनी पर्टिकुलर ब्रांड, एनी प्रोडक्ट, एनी इंडस्ट्री, एनी सर्विस। विद वन क्लिक यू कैन रीच टू द वर्ल्ड, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, राइट? एक क्लिक के साथ हम लोग सब आज कनेक्टेड हैं, एक एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग सब एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। ये मीटिंग पता नहीं कब हो पाती अगर ये ऑनलाइन नहीं होती तो, ठीक है? तो हम लोगों को आज 3 चीज़ें सिखा के जाऊँगा मैं। वो 3 चीज़ें आपके इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, काफ़ी ईजी है, काफ़ी अमेजिंग है। किसी को भी कहीं पर भी ऐसा लगता है कि डिफ़िकल्ट हो रहा है, रेज अ हैंड, अनम्यूट योर सेल्फ, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एड्रेस। बट प्रेफरेबली एंड ऑफ द सेशन करेंगे तो बेटर रहेगा। बाकी टाइम इंटरेक्टिव रखना, जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा मुझे आंसर देना, तो मुझे मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा। चलो ग्रेट। Moving forward, since Prachi already mentioned about me, I'll just give you a little bit of introduction about me as well. I'm an IT engineer turned digital marketer who loves to work out. I am the co-founder and CEO of Big Mouth Digital and Media, which is a branding and marketing agency based out of Mumbai. It's been about 5.5 years that I am in the field, and it's about 3.5 years that the company started. We work with 15 plus industries across various verticals, across various backgrounds. For some of our clients being Axis Bank, Bharat Infra Group, Blue Sea Worley, and many more. I am somebody who's also a visiting faculty, a lecturer, a speaker, a keynote speaker, a believer of somebody who loves food and loves to make people happy. There were so many people who wanted to spread smiles over here. Just add one more to the list, okay? I'll try to do the same for all of you. I will make sure that you all have a big smile when you started, which you already did, and when you end, you will have an even bigger smile. And I'm also the host of a podcast called Be Limitless with Tarun Makhija. And lastly, I also host a live series on Instagram which is called Tarun के साथ, जिसमें मेरे साथ अलग अलग इंडस्ट्री के लोग आते हैं और अपनी इनसाइट शेयर कर सकते हैं। जो मैं नहीं कर सकता वो मेरे ऑडियंस को शेयर करते हैं। सुपर। तो इवेंट्स सारे ऑनलाइन हो चुके हैं, राइट? सब कुछ है ना? अच्छी बात है कि गंदी बात है? चलो फटाफट बताओ। मतलब मे बी टाइप रिस्पॉन्स है, ठीक है। कोई बोलता है अच्छी बात है, कोई बोलता है बुरी बात है, कोई बोलता है चलो ठीक है, अडेप्ट टू द चेंज। बट एक और चीज़ नोटिस करिए आपने, इवेंट्स तो ऑनलाइन मूव हो चुके हैं, पर आपके ऑडियंस भी तो ऑनलाइन मूव हो चुका है, राइट? सब के सब लोग, somebody said no. Yeah, so I want to know why no. एजुकेशन पता ही नहीं है उनको कि ऑनलाइन इवेंट्स हो रहे हैं, ऐसा? उनको पता नहीं रहता है जूम कैसे प्ले करना है, क्या करना है प्रॉपर्ली। ठीक है, तो जूम के अलावा भी जो इवेंट्स हो रहे हैं वो भी वेबसाइट्स पर भी हो रहे हैं, ठीक है। तो हम एक बार ये देखते हैं कि हम कैसे ऑनलाइन इवेंट्स कर सकते हैं। आई एम श्योर आप लोग ऑलरेडी कर रहे होंगे, मैं आपको वो सिखाने नहीं आया हूँ क्योंकि आप वो सब मेरे से बेहतर जानते हैं। मैं आपको वो सिखाने आया हूँ कि आप वो ऑनलाइन इवेंट को प्रमोट कैसे कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है? चलो ग्रेट। क्या आप सब मेरे साथ सुन पा रहे हैं? मुझे एक थम्स अप देंगे प्लीज़। यस। चलो ग्रेट। विशाल एक ब्यूटीफुल सा हॉल में बैठे हैं, काफ़ी सुंदर सा बैकग्राउंड है उनके पास। स्टार सिंगर भी है हमारे पास जिन्होंने अपना बैकग्राउंड अभी चेंज कर लिया है। मेरी नज़र सब पर है, ठीक है? आंखें दो हैं पर नज़र सब पर है। चलो, तो एक प्रॉमिस मुझे आप सबको करना पड़ेगा जिसके लिए आप सबको अगले 15 से 20 मिनट तक सबको, बड़े से बड़े लोगों को, अभी स्टार्ट ऑफ करने वाले लोगों को, दिग्गज लोगों को, सबको मेरा स्टूडेंट बनना पड़ेगा। चलेगा? सबके स्टूडेंट बन सकते हैं सब लोग? रोहित जी फ़ोन में खोए हुए हैं यार,
रोहित जी यार ऐसा मत करो ना। Yes, sir. चलो ग्रेट। तो वापस से कुछ भी फ़ोन में काम है, 2 मिनट दे रहा हूँ, सब फ़ोन में सब कुछ चेक कर लो। बीवी का नोटिफिकेशन, क्लाइंट का नोटिफिकेशन, बच्चों का कोई नोटिफिकेशन है, या फेसबुक पे कोई है, या फिर इंस्टाग्राम पे कोई है, या लिंक्डइन पे कोई है, सब लोग फटाफट कर लो। बीवी की नोटिफिकेशन या हस्बैंड के नोटिफिकेशन फिलहाल जिनके साथ भी है वो घर पे ही नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो इसीलिए अगर सब हम लोग इसके अंदर रहेंगे तो ये 20-25 मिनट हम लोग मिलकर अमेजिंग बनाएंगे, ठीक है? चलो ग्रेट। तो अब हमने बात करी कि ठीक है चलो इवेंट्स ऊपर चले गए हैं, ऑनलाइन चले गए हैं, उसको प्रमोट कैसे करेंगे? 3 मस्ट डूस एक इवेंट के पहले, आप सबको ये पता भी होंगे या फिर किसी किसी को नहीं भी पता होंगे, तो जिसको ये पता है अमेजिंग, एक रिविजन कर लो, जिसको नहीं पता है उनके लिए मैं यहाँ पर हूँ, आपको बता देता हूँ। नंबर 1, एक अमेजिंग सा हैशटैग चूज़ करना एक इवेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज की तारीख में है इम्पॉर्टेंट, ओके? कितने लोगों को पता है कि हैशटैग क्या होता है? सबको पता है? ऐसा कोई है जिसको नहीं पता हैशटैग क्या होता है? कोई भी इंसान चलेगा, आई कैन एक्सप्लेन इट। अमित जी, Please go ahead. अमित जी, यू डोंट नो व्हाट इज हैशटैग, राइट? ओके, ठीक है। तो एक हैशटैग बेसिकली जैसे आप गूगल में कुछ टाइप करते हैं तो आपको आता है इवेंट कंपनीज इन मुंबई, तो वो एक एक चीज़ क्या होती है कि कीवर्ड होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसी चीज़ को हम सोशल मीडिया भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हैशटैग बना के, जैसे मेरा हैशटैग है जो मैं यूज़ करता हूँ, हैशटैग तरुण स्पीक्स, ठीक है? मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, बड़ी अच्छी चीज़ों के बारे में बोलता हूँ। तो उसके अंदर मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बातें करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग की बातें करता हूँ, करियर की बातें करता हूँ। तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे आप उस हैशटैग पे क्लिक करते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या लिंक्डइन पर, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सब एक के नीचे ही आ जाएंगी। तो कितना अमेजिंग होगा कि हम हमारे इवेंट का हैशटैग बनाया और हर चीज़ उसके अंदर ही आ गई, एक ही के अंदर, राइट? तो अमित जी समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? इजी था कि अभी भी नहीं समझ पा रहे? कुछ हद तक नहीं। नहीं। तो हमने एक If we कीवर्ड, have to search from Tarun, if we have to search from Tarun's name, then the event can be searched directly. राइट, बट मैंने एक अपना पर्टिकुलर हैशटैग बनाया है जिसके अंदर मेरी सारी चीज़ें होंगी और मेरे बारे में ही होंगी। तरुण मखीजा बहुत सारे हो सकते हैं, तरुण स्पीक सिर्फ मैंने बनाया, मेरे लिए बनाया। फॉर एग्जांपल एक और इवेंट का एग्जांपल लेते हैं, जैसे ओलंपिक्स 2020, उसको वो रेप्लिकेट कर सकता है? नहीं। तो उस हैशटैग में जो भी इंसान ट्वीट करता है, इंस्टाग्राम में पोस्ट डालता है, फेसबुक पर डालता है, वो हर एक चीज़ एक सिंगल चीज़ के अंदर आ जाती है। इट्स लाइक अ बकेट, एक बकेट में आप सब कुछ डालते जा रहे हैं। अगर आपने वो हैशटैग यूज़ करा है तो एक अच्छा हैशटैग एक इवेंट के लिए क्यों ज़रूरी है मैं ये बताता हूँ, ठीक है? आपको एक हैशटैग ऐसा चूज़ करना पड़ेगा जो काफ़ी ईजी टू रिमेंबर, ठीक है? ऐसा डिफिकल्ट सा चूज़ नहीं करना कि ऑडियंस को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ है भाई ये। ऑडियंस कौन? कोई भी इंसान जो इवेंट को अटेंड करेगा या वर्चुअली भी देख रहा है या फिर अपने इवेंट के बारे में किसी को बताने भी वाला है, ठीक है? तो हम 3 चीज़ें ध्यान रखेंगे एक हैशटैग यूज़ करने के पहले, ठीक है? ओके, कैन वी गो नेक्स्ट? ओके ग्रेट। पॉइंट नंबर 1, क्या हमारा हैशटैग अनमिस्टेकेबल है? अनमिस्टेकेबल का मतलब कि क्या कोई बहुत डिफिकल्ट स्पेलिंग यूज़ तो नहीं करी है हमने, या कोई बहुत डिफिकल्ट सा वर्ड तो नहीं है जो कोई प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा है? ऐसा तो नहीं है, करेक्ट। नंबर 2, हमारा हैशटैग शॉर्ट एंड सिंपल है क्या? ऐसा तो नहीं है हैशटैग तरुण स्पीक्स ऑन डिजिटल मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल मीडिया। कोई याद कर पाएगा उस चीज़ को? कर पाएंगे याद? नहीं कर पाएंगे। तरुण स्पीक्स याद करना आसान है, ईजी है, ईजी है, ठीक है? अभी एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे कितने सारे वेडिंग्स होते हैं, राइट? हर वेडिंग में एक हैशटैग कंपलसरी बनाते ही हैं लोग। राजा की हुई रानी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, हाँ। तो ऐसे हैशटैग सब लोग बनाते ही हैं। तो हमको क्या करना है, हमारा इवेंट भले स्पोर्ट्स का हो, भले डांसिंग का हो, भले सिंगिंग का हो, भले एक वेडिंग हो, भले कॉर्पोरेट हो, कुछ भी हो, वो हैशटैग शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। 2 से 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उससे ज़्यादा ऊपर करेंगे तो डिफ़िकल्टी होती है सामने वाले को यूज़ करने में और याद रखने में। तो वापस से 3 चीज़ें, मिस्टेक करने की गुंजाइश हम लोग 0 रखेंगे, हैशटैग्स को छोटा रखेंगे और आसानी से रिमेंबर करने वाला हैशटैग रखेंगे, ठीक है? तो उससे क्या होगा, जब भी हम लोग सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन प्रमोट करेंगे, हम हर जगह ये हैशटैग यूज़ करके प्रमोट करेंगे। हमारे हर एक पोस्ट में जो हम इंस्टाग्राम पे डालते हैं या फेसबुक पे कुछ डालते हैं, ये हैशटैग हम लोग यूज़ करेंगे ही करेंगे। उससे क्या होगा, हम लोग एक इवेंट के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सब एक के नीचे एक चीज़ के नीचे डालते जा रहे हैं। इट्स लाइक समझ लीजिए एक फोल्डर बना रहे हैं आप ऑनलाइन जिसका नाम है ये हैशटैग। ऐसा फोल्डर इमेजिन मत करना, नहीं तो लोगों को लगेगा मैंने क्या पढ़ा दिया। बट ऐसा इमेजिन करना कि एक चीज़ को मैंने क्लिक किया तो उसके अंदर मुझे सब चीज़ें आ गई। अब इंस्टाग्राम पर जाना, सर्च बार पर क्लिक करना, ऊपर हैशटैग जो आपकी इच्छा हो टाइप करना,
उसके नीचे जितनी भी चीज़ें ना सब आ जाएंगी। ठीक है, आसान था। चलो ग्रेट। नंबर 2, सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लान। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग काफ़ी आसान सी चीज़ है? थम्स अप दें। प्राची ने शेक ऑफ द हैड दिया मेरे को, चलो ठीक है, कोई मेरे साथ है, चलो ठीक है। कितने लोगों को लगता है कि वापस से मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ स्क्रीन को, आप सबको देख पाऊंगा, ठीक है। कितने लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया एक बहुत ही ईजी चीज़ है करने के लिए? चलो, आई कैन से 30-40% फील इट्स ईजी टू डू। Sudhanshu, you were saying something? Easy but complex. Couldn't hear you, sorry. Easy but complex. Easy but complex. So I would say that half the people in the world feel that यार एक क्रिएटिव बनाया, ये क्रिएटिव बन गया, इसके नीचे एक टैगलाइन लगा दिया, कैप्शन लगा दिया और पोस्ट कर दिया, वो सोशल मीडिया पे डाल दिया, मार्केटिंग हो गई। ऐसा होता है क्या? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा होता है, बट ऐसा होता नहीं है। संकेत का इतना बड़ा शेक ऑफ द हेड चलते ही जा रहा है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इट इज़ अ साइंस। वाई इज़ इट अ साइंस? बिकॉज आपके लिए कैंपेन का सबसे पहले आइडिया सोचना पड़ता है, जो आप सब लोग सोचेंगे। आप सब लोग आइडिया सोच सकते हैं, राइट? आप हर एक इवेंट को आइडिया तो खुद से करते ही हैं, ठीक है। मैं मानता हूँ कि सोशल मीडिया में सब लोग एक्सपर्ट नहीं होंगे, बट एक आइडिया तो सोच सकते हैं कि कैसे इसको प्रमोट करना है, कहाँ पर प्रमोट करना है। अब इमेजिन करो कि आप एक वेडिंग, एक समझो आप एक वेडिंग प्लानर हो और आप वेडिंग्स को प्रमोट कर रहे हो लिंक्डइन पर। लीड्स आएंगे क्या? अच्छे आया ना? नहीं आएंगे ना। लिंक्डइन पर लोग शादी के लिए एक इवेंट प्लानर को नहीं ढूंढ रहे, लोग कॉर्पोरेट इवेंट्स के लिए लिंक्डइन पर ढूंढते हैं लोगों को। तो अगर मैं कॉर्पोरेट इवेंट का ऐड करूँगा तो मैं लिंक्डइन पर करूँगा, मैं वेडिंग्स के लिए करूँगा तो फेसबुक इंस्टाग्राम पर करूँगा, और पिंटरेस्ट पर भी करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि वहाँ पर मेरा ऑडियंस प्रेजेंट है। तो जहाँ पर मेरा ऑडियंस है वो है ये फ़ोन, उसके अंदर जो जो एप्लीकेशंस है उसके अंदर मैं प्रमोशन करूँ, राइट? ना कि सब जगह पे करूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपने स्ट्रैटेजी को डिवाइड करेंगे उन चीज़ों में जो सबसे पहले आपका आइडिया बनेगा। समझो मेरा आइडिया है, मेरा ऑब्जेक्टिव है टू गेट एज मेनी पीपल अवेयर अबाउट माई ब्रांड एज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ सिंगर, ठीक है, तो मुझे प्रोडक्शन हाउसेस से टाइप कर सकता हूँ, मैं डबिंग स्टूडियो से टाइप कर सकता हूँ, मैं प्रोड्यूसर से टाइप कर सकता हूँ, मैं म्यूजिक डायरेक्टर से टाइप कर सकता हूँ। तो मैं उन सबको रीच आउट करूँगा थ्रू अ थिंग विच आई टेल यू बाय द एंड ऑफ द सेशन। तो तब तो रुकना पड़ेगा, ठीक है। जितने लोग वीडियो बंद कर रहे हैं कोई बात नहीं, मुझे लगता है आपके पास कुछ ज़रूरी काम होगा, बट जितने लोगों ने वीडियो ऑन रखा है आप सबके लिए मेरी तरफ से एक ताली। चलो, थैंक यू। अभी हम लोग 3 चीज़ें करेंगे हमारे किसी भी इवेंट के लिए। हम लोग ये 3 चीज़ें करेंगे, बेयर मिनिमम बोल रहा हूँ, ग्राउंड रूल नहीं बना रहा हूँ, बेयर मिनिमम ये 3 चीज़ तो करने ही वाले हैं, ठीक है। नंबर 1, हम लोग फेसबुक पर क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे ईजी चीज़, सबको पता है ये चीज़ कैसे करते हैं। इवेंट पेज बनाना सबको आता होगा, जिन को नहीं आता है उनको मुझे अलग से सिखाना पड़ेगा, बिकॉज मेरे पास टाइम की लिमिटेशन है। सबसे पहले हम लोग एक इवेंट का पेज बनाएंगे जिसके अंदर इवेंट के बारे में हर इन्फॉर्मेशन होगी, कब होने वाला है, किस बारे में होने वाला है, कौन कौन अटेंड करने वाला है, कोई स्पीकर्स आ रहे हैं क्या, कोई स्टॉल है क्या, कोई एग्जीबिशन में कितने स्टॉल्स हैं, कितनी कैटेगरीज है, कोई फूड आइटम्स वाला है क्या, कोई बार में है क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहाँ पर हम लोग को ये करने के बाद हमको इसको प्रमोट भी करना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ बताने से और इवेंट में हमारे दोस्तों को इन्वाइट करने से इवेंट प्रमोट होके तो आ नहीं पाते हैं उसके अंदर, उनको राइट लोगों तक पहुँचना पड़ता है। कैसे पहुँच सकते हैं बताता हूँ। नंबर 2, हम लोग ट्विटर पे क्या कर सकते हैं? टेम्पलेट्स बना सकते हैं ट्वीट के। ट्वीट टेम्पलेट्स मतलब क्या होता है? एक ट्विटर का कैरेक्टर लिमिट अभी 280 हो चुका है। ट्वीट टेम्पलेट में हमारा क्या होगा? समझो विशाल इवेंट में आ रहे हैं एज ए सिंगर, तो इंट्रोड्यूसिंग विशाल सिंह द स्टार परफॉर्मर ऑफ द नाइट एट जियो गार्डन मुंबई ऑन 15th of July at 9 PM ऑनवर्ड्स, हैशटैग विशाल के साथ, ठीक है। वो मेरा इवेंट का हैशटैग नहीं हो सकता है, मैंने विशाल के लिए हैशटैग बना दिया। इवेंट का हैशटैग मेरा कुछ और हो सकता है। हैशटैग कोरोना के बाद ऐसा कुछ कर सकते हैं, अच्छा सा कुछ इवेंट के बाद ऐसे एक रिवाइवल हैशटैग बना सकते हैं कि कोरोना के बाद हम लोग एक बहुत बड़ा इवेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग विशाल के साथ सिंगिंग करो ना, चलो ऐसा भी कर सकते हैं, वेरी गुड। तो हम लोग वो ट्वीट टेम्पलेट बना के रखेंगे जिसमें हमारा वेन्यू, डेट, टाइम और हमारा इवेंट का यूआरएल तो फिक्स रहेगा, राइट। वो चीज़ तो चेंज होने नहीं वाली है। यूआरएल मतलब क्या होता है? वो यूआरएल किस चीज़ का होगा? हमारी इवेंट की वेबसाइट का होगा। क्यों ये ज़रूरी है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आएगा वो, ठीक है। तीसरा, इंस्टाग्राम पर जब भी हमारे
जैसे ही हमारे इवेंट्स ऑफलाइन हो जाएंगे, हमारे पास फ़ोटोज़ होने चाहिए वेन्यू के अच्छे अच्छे, हमारे पास स्पीकर्स के फ़ोटोज़ होने चाहिए अगर वो स्पीकर्स आ रहे हैं तो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, स्पीकर्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं विद स्टार परफॉर्मर्स, वी कैन रिप्लेस इट विद सिंगर्स, डांसर्स, हाईलाइट्स ऑफ द इवेंट, प्लस 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 प्लस, जो आपकी इच्छा है। मैंने स्पीकर से एक एग्जाम्पल के लिए दिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मुझे इस इवेंट में आना ही क्यों चाहिए? सबसे पहली बात, अगर मुझे आपने वो रीज़न नहीं दिया तो क्या मैं इवेंट में आऊँगा? नहीं आऊँगा, राइट? मेरे लिए इवेंट में क्या है, मैं एक फॉर एग्जांपल मैं एक टीनेजर हूँ और आप कल कर रहे हैं कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट, मैं 100% आऊँगा बिकॉज मुझे कोल्ड प्ले बहुत पसंद है। आप कल से एक ईडीएम का कॉन्सर्ट करिए, मैं फिर उसमें भी आऊँगा। आप एक कव्वाली या गज़ल नाइट रखिए, तो क्या एक टीनेजर आएगा? प्रोबेबली एक आएगा 100 में से, बिकॉज कुछ कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है, ठीक है। पर यही चीज़ अगर मैं उन लोगों के लिए करूँ जो हमारे 40 to 60 एज ग्रुप वाले अमेजिंग लोग हैं, जिनको गज़ल बहुत पसंद है, जिनकी जो जगजीत सिंह के फैंस हैं, और उनको वहाँ पर टारगेट करूँ कि आपको इस इवेंट का पार्ट क्यों होना चाहिए, रीलिव जगजीत सिंह, तो लोग आएंगे आएंगे। तो अगर मैं आपको वाई डिफाइन कर सकता हूँ तो मैं आपके लिए सही कर रहा हूँ। अगर मैं वाई डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं मिस्टेक कर रहा हूँ अपनी स्ट्रैटेजी में, मेरे प्लान में कुछ गलती है, ठीक है। अभी हमने फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर लिया है, सबसे ईजी एग्जाम्पल्स दिए तीनों। अभी कितने लोगों के लिए ऐसा होगा कि ट्विटर इतना इफेक्टिव नहीं होगा, कितने लोगों के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम बहुत इफेक्टिव होगा, कितने लोगों के लिए इंस्टाग्राम और ट्विटर होगा। तो ये कॉम्बिनेशन आप अपने मन से बना सकते हैं, ठीक है। वो एक्सपर्टीज़ हम लोग को कब आती है, जब हम लोग करते रहते हैं चीज़ें एक के बाद एक। तो मैंने ये 3 चीज़ आपको बताई, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई लिमिटेशन नहीं है, ये 3 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ करनी ही चाहिए। अब प्लान कैसे बनाएंगे? कंटेंट, इवेंट इंट्रोडक्शन, यस। तरुण जी सॉरी, मैं एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ। जस्ट आई डोंट वांट टू ब्रेक योर फ्लो। टू ऑल द मेंबर्स, फ्रेंड्स, अपन ये तरुण भाई का सेशन जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग एज वेल एज इम्पोर्टेंट है अपने लिए। वी आर लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स, so we will be not be hosting the breakout rooms today, so that we get little extra time from Tarun ji and we can understand and increase our knowledge about digital world. So please make a note that breakout rooms nahi rahega, so that you can stay here more and understand from him, Tarun bhai, and we can give him more time. Thank you Tarun bhai, you can continue. थैंक यू अमित। तो मतलब चलो अप्रूवल मिल गया क्या, कुछ अच्छा सिखा रहा हूँ मैं आप सबको, ठीक है। चलो गुड जॉब। अपने आप को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ठीक है, कभी भूलना मत। सबसे पहले अपने आप को अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। जस्ट किडिंग। सो अब ये प्लान बनाना है हमको, तो प्लान में क्या होना चाहिए? एक कैंपेन का आइडिया होना चाहिए, कैंपेन का हैशटैग होना चाहिए, कैंपेन स्लैश इवेंट हैशटैग बोल सकते हैं हमारी इंडस्ट्री के लिए। नंबर 3, फ्लो क्या होगा, कंटेंट कैसे फ्लो होगा मेरा। कंटेंट फ्लो मतलब सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ क्या करते हैं, सब लोग एक थोड़ा हाइप क्रिएट करते हैं, फिर एक इवेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर इवेंट में क्या होने वाला है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, कौन कौन इवेंट को अटेंड कर रहा है या आ रहा है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, कोई स्टार परफॉर्मर है तो उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई स्पेसिफिक बहुत बड़ा बंदा आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल एक इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है जिसमें समझो एग्जांपल के तौर पे मार्क ज़करबर्ग आ रहे हैं खुद, तो बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स और मार्केटर्स इंटरेस्टेड होंगे, तो हमको स्टॉलवर्ड्स को इंट्रोड्यूस करना है उसके अंदर। ये सब करने के साथ साथ हमको एंगेजमेंट भी रखना है ऑडियंस के साथ। जैसे आप सब लोग कैसे मुझसे एंगेज कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग चैट पे रिप्लाई कर रहे थे, कुछ लोग थम्स अप दे रहे थे, कुछ लोग मुझे अनम्यूट करके बता रहे थे। तो ऑडियंस को लाइक करना है, आपकी चीज़ें शेयर करना है, तो वो चीज़ हम लोग कैसे करेंगे? कुछ इंटरेस्टिंग बताकर उनको क्विज रख सकते हैं, बीच में क्विज रख सकते हैं, उनके लिए कॉन्टेस्ट रख सकते हैं, प्लस 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 काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक प्लान बनाना एक अलग ही चीज़ है जो मुझे कम से कम 4-5 घंटे लगते हैं किसी को समझाने में ढंग से। मैं आपको एक ब्रीफ में बता रहा हूँ। हमने ये सब कर दिया, फिर इवेंट के लिए हर इंसान काउंटडाउन तो करता ही है, बट काउंटडाउन को इंटरेस्टिंग कैसे बनाए? प्रॉब्ली समझो विशाल स्टार सिंगर शान, किसी ने स्क्रैच कर दिया स्क्रीन पे, प्लीज़ हटा दीजिए, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है मुझे वो। कोई कुछ ना कुछ करते जा रहा है स्क्रीन पर, प्लीज़ गाइज इफ़ यू कैन रिमूव इट, इट डिस्ट्रैक्ट्स मी अलॉट because this will yeah, thank you. Can you remove the arrows also please? जो भी भला मनुष्य है भाई प्लीज डिस्टर्ब ना करें। चेंज कर दिया, सेटिंग चेंज कर दिया, अब नहीं होगा। थैंक यू। सो वेयर वाज आई? ऐसे ही होता है, ब्रेक हो जाता है फ्लो। काफ़ी लोग काउंटडाउन करते हैं इवेंट्स पर, राइट? काउंट डाउन करते हैं हम लोग इवेंट्स को, क्यों ना हम लोग अलग तरीके से काउंट डाउन करें।
5 4 3 2 1 डेज टू गो सब लोग लिखते हैं राइट, हर इंसान लिख रहा है वो, तो हम लोग अलग कैसे करेंगे? एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैंने ललित जी को बोल दिया 5 days to go का वीडियो बना के भेज दीजिए, संकेत को बोला 4 का बना दीजिए, विशाल को बोला 2 का बना दीजिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ एग्जाम्पल। दूसरी चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अलग अलग एलिमेंट्स यूज़ करके कर सकता हूँ। मैं एक साइन बोर्ड ले सकता हूँ जहाँ पे 5 लिखा हो, उसके नीचे 5 days to go लिख सकता हूँ। 4 की जगह मैं 4 fingers यूज़ कर सकता हूँ, 2 की जगह मैं 2 रुपीज़ से कॉइन यूज़ कर सकता हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। फाइनली हमारे इवेंट का दिन आता है, इवेंट के दिन पर हम लोग को बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, राइट फ्रॉम स्टोरीज करनी पड़ती है इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ताकि लोगों को अपडेट मिलता रहे कॉन्स्टेंटली क्या चल रहा है इवेंट में, कॉन्स्टेंट पोस्ट करना पड़ता है। हमारे फोटोग्राफर से हमारा सिंक बहुत अच्छा बना हुआ होना चाहिए इवेंट के अंदर। मैं इवेंट्स उनकी बात कर रहा हूँ, वेडिंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ इसमें पर्टिकुलरली मैं, ठीक है, मैं उस इवेंट्स की बात कर रहा हूँ जो लोग अटेंड करने आते हैं, एग्जीबिशन हो गया, कॉन्फ्रेंसेज हो गए, कॉन्सर्ट्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये भी हो गया। हमारे पास कम से कम 3 से 4 लोग होने चाहिए हमारी टीम के अंदर सोशल मीडिया की, जो वहाँ पर आके इंस्टाग्राम पर लाइव करेंगे, फेसबुक पर लाइव करेंगे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को। उन सब के अलावा उस हर प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करेंगे जहाँ पर ज़रूरी है। हर 1 घंटे में 1-2 पोस्ट हम लोग कर सकते हैं मिनिमम। कितने लोगों ने यहाँ पर लिल फ्ली अटेंड किया है? लिल फ्ली मुंबई का किसी ने अटेंड किया है यहाँ पर? केतन जी, मनीष जी ने किया है, चलो ग्रेट। मनीष जी ने किया है, अमित ने किया है, शतांशु ने किया है, चलो कुछ लोगों ने किया है। तो क्या आप सबको बता सकते हैं कि लिल फ्ली एक दिन में कितने पोस्ट करता है जब उनका इवेंट चल रहा होता है? एवरेज याद हो तो आपको? हर घंटे में कम से कम 3-4 करता है, ठीक है, और हर एक बंदा उसको भी पोस्ट करता है जो वो लोग टैग करते हैं, स्टोरी में डाल देते हैं। उससे क्या होता है, ऑडियंस को पता पड़ता है कि अच्छा ये सब इवेंट में चल रहा है, तो हम लोग सोशल मीडिया पर कॉन्स्टेंट एक इंगेजमेंट बनाए रख रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, राइट? आसान था ये चीज़, कर सकते हैं सब लोग मिलकर, अपनी टीम के साथ कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज के साथ कर सकते हैं, बट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट और मेरी फेवरेट चीज़, एक परफॉर्मेंस ड्रिवन वेबसाइट होना चाहिए हम सबके पास, ठीक है, उस इवेंट के लिए स्पेसिफिकली। आपकी वेबसाइट नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप सबके वेबसाइट्स होंगी, बहुत अमेजिंग होंगी, हर इवेंट की डिटेल्स होंगी, गैलरी होगी, सब कुछ होगा, बट परफॉर्मेंस ड्रिवन वेबसाइट पे मुझे बता सकता है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ? एनीवन जिसने अभी तक अनम्यूट नहीं किया है उसको बोलना पड़ेगा। एनीवन, गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। रुक्मिनी, have to engage, yeah. Whoever is visiting your website should be engaged for more than at least 15-20 seconds. And there has to be, like, I don't know what is it called in technical terms, but somewhere where they can connect and contact the person. Okay. It should be able to take the load, because many people will hit the website. It should be able to take the load. That should be the performance of the website. It should be able to take the load, okay? So I think the If you can traffic. explain what is the performance-driven website? What do you mean by that? No, who's that? Amit? Yeah. No, that's what I'm asking you first. Like, what is the meaning of a performance-driven website? वही तो मैं आपसे You पूछ are रहा telling हूँ, what should it be? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पहले आप बताएं फिर मैं बताऊंगा। Performance is actually what I think is the overall traffic on your website. Performance is how well you're doing as a in social digital marketing as a brand. ये आपकी achievement के बारे में लिखना है क्या? चलो ठीक है। Basically, to know the pictures of it, basic कहाँ से audience आ रहा है, and which software or which social media is working well for you. So ultimately the end source to land should be our website. So किधर से आ रहा है अभी हमको पता चलना चाहिए। चलो ठीक है, ये सारे पॉइंट वैलिड हैं, पर इस टर्म से रिलेटेड नहीं है। ये सब वेबसाइट से रिलेटेड है कि वेबसाइट लोड होना चाहिए, बहुत ट्रैफिक है तो भी लोड होना चाहिए, कहाँ से लोग आ रहे हैं वो भी पता पड़ना चाहिए, सब कुछ। परफॉर्मेंस कितना एक्टिव है सोशल मीडिया में, ओके, इसके ऊपर। तो केतन जी हमको सोशल मीडिया को थोड़ा पीछे रखना है। अभी हम सिर्फ वेबसाइट की बातें कर रहे हैं। अभी वेबसाइट पे परफॉर्मेंस ड्रिवन पे मैं क्यों बोल रहा हूँ? परफॉर्मेंस ड्रिवन का मतलब ये होता है, आपने कितनी वेबसाइट्स देखी होंगी जिस पे आप एक सिंगल लैंडिंग पेज बनाते हैं, वन स्क्रॉल और फिनिश, स्क्रॉल किया, इवेंट डिटेल्स, बुक द इवेंट, बुक टिकट, खत्म। देखा है किसी ने ऐसी वेबसाइट? आशीष ने देखा है, हार्दिक ने देखा है, करण ने देखा है, संकेत ने देखा है, चलो ठीक है, कुछ लोगों ने देखी है ऐसी वेबसाइट्स, तो केतन जी ने भी देखा है, रोहित ने भी देखा है, चलो अमेजिंग। तो परफॉर्मेंस ड्रिवन का मतलब क्या होता है? आपको क्या चाहिए वेबसाइट से? परफॉर्मेंस चाहिए, राइट?
लीड्स चाहिए, टिकट बुकिंग चाहिए, यही आपका एंड गोल होगा इवेंट में, राइट? ट्रैफिक और वो सब तो आएगा ही, आप सोशल मीडिया पे प्रमोशंस करेंगे तो वहाँ पर आएंगे ही लोग, बट बुकिंग चाहिए ना हमको, परफॉर्मेंस चाहिए। तो परफॉर्मेंस ड्रिवन का मतलब ये होता है कि हम एक ही सिंगल लैंडिंग पेज बनाएंगे हमारे सिंगल इवेंट के लिए, ठीक है? हम कोई भी इवेंट क्लब नहीं करेंगे उसके अंदर, क्यों नहीं करेंगे? ताकि इंसान का फोकस एक ही चीज़ पर बना रहे। मैंने उसको यहाँ पर क्यों बुलाया है? अपना लीड दे के जाने के लिए, अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी देने के लिए। अगर मैं उसको डिस्ट्रैक्ट करूँगा, इस पेज के अंदर एक और पेज रखूँगा, फॉर एग्जाम्पल www.tarunSpeaks.in/about, मेरा वो कोई पेज होगा ही नहीं, सेक्शन होगा, एक सेक्शन। स्क्रॉल करूँगा नीचे अबाउट आ जाएगा, स्क्रॉल करूँगा अबाउट द इवेंट आ जाएगा, स्क्रॉल करूँगा वाई शुड यू अटेंड आ जाएगा, और जगह जगह पर फॉर्म्स होंगे जहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, ठीक है? ऊपर एक फॉर्म होगा राइट में, क्लिक करेंगे तो आप इंस्टेंट कॉल बैक के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लिक करेंगे बुक योर टिकट्स नाउ पे तो डायरेक्टली बुकिंग सेक्शन पे लेके जाएगा आपको, करेक्ट? तो एक परफॉर्मेंस ड्रिवन वेबसाइट या फिर एक सिंगल लैंडिंग पेज, एक सिंगल पेज और वेबसाइट को एक लैंडिंग पेज बोलते हैं, क्योंकि एक ही पेज होता है, उसमें मल्टीपल पेजेस नहीं होते, ठीक है? ये हमारे इवेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मुझे चाहिए कि आप मुझे लीड देके जाएं या फिर मेरा इवेंट का बुकिंग करके जाएं, और मुझे एक ही वेबसाइट में कॉम्प्रिहेंसिवली उसको सब कुछ समझाना है। मेरा एम ये है, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए कि उसको मैं बहुत सारा डिटेल दूँ, वो कंफ्यूज हो जाए, ये करे वो करे, मुझे वो नहीं चाहिए, ठीक है? So, Tarun, I have a question for you here. Can I ask? Sure, please go ahead. So, what is the difference? I mean, supposing I say that normally when you said you create one single landing page, so are we saying a website having a microsite or a page on it specifically for the event that you have created, or having only one single landing page for that particular event which is not connected with your website at all? Exactly what you said in the second part. Creating a microsite or a landing page which is not connected to our parent website at all. But we can tell the people, yes, XYZ event organized by XYZ event company. वो बताना ज़रूरी है, बिकॉज ट्रस्ट भी चाहिए ना मुझे, मैं ऑडियंस हूँ आपका, मुझे ट्रस्ट भी तो चाहिए आपसे। तो जैसे हर इवेंट के लिए हम लोग को ये बनाना है, ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमको ऑडियंस को उस पर ही लाना है। अब हर इवेंट के लिए बनाएंगे तो हर इवेंट के लिए कम से कम 25-30 हज़ार रुपये स्पेंड करेंगे। क्या हम लोग कर भी सकते हैं? नहीं भी कर सकते। क्या कर सकते हैं? दूसरे इवेंट के लिए जैसे इवेंट खत्म हुआ, इस वेबसाइट को चेंज करके अपने अगले इवेंट के बारे में बता दें, उसमें कंटेंट चेंजेस कर सकते हैं। बट टेक्निकली वो आप लोग करेंगे तो आपकी उस इवेंट की इन्फॉर्मेशन सब चली जाएगी, तो वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। हर बार एक नई वेबसाइट बनाएंगे, छोटी सी, अमेजिंग लगेगा। एक सिंगल टेम्पलेट खरीद के बना सकते हैं वर्डप्रेस पे, काफ़ी आसान चीज़ होती है। अगर थोड़ा सा Tarun, if I have a brand, if I have 5-6 different brands of IPs, exhibitions, okay, so as per your recommendation, we can have 5-6 different websites for individual this thing events. Yeah. So now when it comes to the previous part, Facebook, Insta and the Twitter part, so is it advisable to have 6 different Facebook pages or accounts, or should we merge them in one? See, I would say keeping one parent company's Facebook, Instagram or Twitter account is more advisable, because what will happen is हर बार आपको स्क्रैच से ऑडियंस क्रिएट करना पड़ेगा। आपने आज एक नया पेज बनाया, उसमें पूरा स्क्रैच से, जीरो से आपको उसको 1000, 2000, 3000 फॉलोअर्स पे लेके जाना पड़ेगा। बट जब मेरी कंपनी के लिए मैं प्रमोशंस कर रहा हूँ तो हर चीज़ उसमें ही एडअप होती जाएगी, राइट? जितने भी लोग इवेंट्स पे आएंगे वो लोग मेरे समझो फॉर एग्जांपल आपकी इवेंट कंपनी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी? हमें Events. I couldn't hear you, sorry. दिवोका इवेंट्स अगर मैंने पेज बनाया तो सब लोग उसके अंदर ही आएंगे, राइट? उसके अंदर मैं मल्टीपल इवेंट्स प्रमोट कर सकता हूँ। बट बुकिंग के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए मुझे एक अलग अलग लैंडिंग पेज बनाना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? बिकॉज क्या आपकी टारगेट ऑडियंस हर इवेंट के लिए सेम रहती है? सेम रहती है तो ठीक है, उसी के अंदर डिटेल चेंज कर दीजिए। समझिए फॉर एग्जांपल एक इवेंट कंपनी का हमने काम किया था, मार्केटेस, तो उनका पहला इवेंट होता मार्केटेस 1.0, दूसरा इवेंट होता मार्केटेस 2.0, तो हमने उसके लिए डिटेल चेंज कर दी। एवरी टाइम टारगेट ऑडियंस इज डिफरेंट, तो हर बार हम लोग अलग बनाएंगे। मेरा रिकमेंडेशन 100% वही रहेगा आपके लिए। पर अगर टारगेट ऑडियंस सेम है तो इवेंट की डिटेल्स अपडेट करके उसके अंदर भी ले सकते हैं हम लोग लीड्स, नो प्रॉब्लम। तो एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। लैंडिंग पेज की जगह पे इफ वी हैव टिकटिंग पार्टनर्स लाइक बुक माय शो या फिर अलग है, तो व्हाट यू रिकमेंड? यू नीड टू क्रिएट वेबसाइट देन आल्सो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास insider.in है, बुक माई शो है, अगर हमने बोला कि बुक योर टिकट्स, और डायरेक्टली वो किस पेज पे जाएगा? बुक माई शो के पेज पे जाएगा या इनसाइडर के पेज पे जाएगा, वो भी ठीक है।
बट अगर आपकी वेबसाइट में मल्टीपल इवेंट्स हैं तो मैं एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊँगा, मैं डेविएट हो जाऊँगा, मैं अबाउट में जाऊँगा, आपके अचीवमेंट्स में जाऊँगा, मैं फिर वहाँ से जाऊँगा। आपका एम क्या था? वेबसाइट पे क्यों आया आप यूज़र? कोई बता सकता है मुझे? थोड़ी देर पहले बोला था सर मैंने। तरुण, खाली यूजर नहीं आते ना, सी अपने ब्रांड पार्टनर स्पॉन्सर्स ये लोग भी तो जाके देखते हैं, भले एंड भले दे देखें सी वो कि लोग। दिस कंपनी इज डूइंग 5-6 बिग इवेंट्स, तो ऑटोमेटिकली उनका एक क्रेडिबिलिटी फैक्टर बढ़ जाता है ना कंपनी का, करेक्ट। कि यार ये तो कंपनी ये के सारे पास ये सारे बड़े इवेंट्स को आईपीज है। सारे इवेंट्स को मैं अपनी पेरेंट कंपनी की वेबसाइट पे मेंशन तो कर ही रहा हूँ ना। ओके। इमेजिन करते हैं आप एक डेवलपर है जिनके पास 15 प्रोजेक्ट्स हैं, हर प्रोजेक्ट अलग अलग एरिया में हो रहा है, हर प्रोजेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन अलग है, प्राइस रेंज अलग है, टारगेट ऑडियंस अलग है। हर प्रोजेक्ट के लिए एक लैंडिंग पेज बनाता हूँ मैं, बट मेरी वेबसाइट पे सब कुछ मेंशन तो करूँगा ही ना मैं। मुझे क्रेडिबिलिटी तो फिर भी Right. चाहिए ना, क्योंकि इवेंट्स कौन कर रहा है? इवेंट्स तो मेरी कंपनी ही कर रही है। तो Right. जैसे Got फॉर it, एग्जांपल got it. अपन लेते हैं एग्जांपल ब्रांड इक्विटी का एग्जांपल लेते हैं बाई ईटी, ठीक है। काफ़ी सारे इवेंट्स करें लोगों ने वर्चुअली ऑनलाइन, जैसे हमारे कैसे ऑफलाइन कॉन्फ्रेंसेस होते थे कि यहाँ पर स्पीकर सेक्शन है, यहाँ पर डाइनिंग एरिया है, यहाँ पर इंटरेक्टिव जोन है, यहाँ पर ये जोन है, यहाँ पर सेल्फी जोन है, जो भी। तो ये लोगों ने सारे इवेंट्स ऑनलाइन करे हैं वर्चुअली, जिसमें ये लोग पूरा वर्चुअली ऑडियंस को दिखाते हैं। तो ये इनके एक इवेंट की लैंडिंग पेज दिखा रहा हूँ मैं आपको, उसका मैं सिर्फ आपको होम पेज दिखा रहा हूँ, होम पेज का फर्स्ट पार्ट। इसके नीचे काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल्स भी थी। सबसे पहले मैंने क्या दिया, मैंने आपको ऑप्शंस दिए ईजी। जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ना तो मैं नए पेज पे नहीं जाऊँगा, मैं स्क्रॉल डाउन होकर सबसे एंड में चले जाऊँगा जहाँ पर कॉन्टैक्ट अस आ जाएगा। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एक पेज में सब कुछ दिखा दें, ख़त्म कर दें चीज़ों को। तो एक्सप्रेस इंटरेस्ट, जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया था तो मुझे नाम भरना पड़ा, मेरी कंपनी का नाम भरना पड़ा, डेजिग्नेशन भरना पड़ा, ईमेल आईडी भरना पड़ा और नंबर भरना पड़ा। जॉइन एज अ पार्टनर ये भी कर सकता हूँ, सीट भी बुक कर सकता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या दिया आपको, 3 कॉल टू एक्शन दिए। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन मतलब भाई आप लोग वेबसाइट पर तो आए बट आपने कुछ एक्शन ही नहीं लिया, आप इन्फॉर्मेशन देख के चले गए, तो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा क्या कैंपेन? नहीं ना, नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा ना रोहित जी, नहीं होगा। इट नॉट बी बेनिफिशियल, बिकॉज मुझे चाहिए कि आप मुझे या फिर अपना डिटेल देके जाए या फिर मेरा टिकट बुक करके जाए भाई, 2 ऑप्शन है। फिर मैं ऐसे आपके चैट भी कर सकता हूँ। अब चैट करने के लिए क्या आप 24 घंटे वेबसाइट के सामने बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते हैं। चलो आप बोलते हैं चलो मैं 2 लोगों को हायर करूँगा, एक 12 घंटे बैठेगा, एक 12 घंटे बैठेगा, कर सकते हैं, बट करना नहीं चाहिए, क्योंकि चैटबॉट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं ऑनलाइन। चैटबॉट डालेंगे जो खुद से पूरा यूज़र का चैट कर लेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बहुत सारे बहुत सारे। फिर व्हाट्सएप पे भी आप देख सकते हैं, मुझे इंक्वायरी डायरेक्टली भेज सकते हैं। और ऐसा मल्टीपल जगहों पर इनकी वेबसाइट में क्या क्या दिया हुआ है उन लोगों ने, फॉर्म्स दिए जो आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। चलो कितने लोग बोर हो रहे हैं, सबसे पहले हाथ उठाएंगे फटाफट, कितने लोग बोर हो रहे हैं? एक्चुअली तुम बोर नहीं हो रहे हैं, बट आइडियली क्या है, टाइम आउट हो रहे हैं, बिकॉज 6 o'clock वी जनरली वाइंड अप। ठीक है, टाइम आउट हो रहे हैं तो ऐसा हो रहा है। ठीक है चलो ठीक है, 10 मिनट्स, 10 minutes is good enough for As everybody? crisp and as fast as possible. As crisp and as fast. ठीक है, I am not But the saying, information is really good. see I was supposed to deliver, see this is something which takes a lot more time than I'm trying to do as quick as possible. So let's do one thing, all the questions in the end now, okay, no questions in the middle, okay, done, ठीक है। तो हम लोग सब लैंडिंग पेज बनाएंगे हमारे इवेंट स्पेसिफिक, क्लियर? तीनों चीज़ कौन रिपीट कर सकता है क्विकली, फटाफट, टाइम बहुत कम है हमारे पास। ओके सिद्धांशु फर्स्ट, create a event hashtag and it should be memorable, it should be easy to remember and short. Prachi, second thing. I'm sorry, Tarun, I just had to step out for some things, so maybe we can take somebody else. No worries. Anish. मत रखो, फटाफट करो। We require social media marketing plan. Right. Yeah, create your own page on Facebook, tweet templates, and Instagram. Why should someone come to your page? Perfect. And the last and third most thing, Bhavika. Performance driven website. Perfect. चलो, सबको अगर पसंद आया तो अपने फ़ोन निकालें प्लीज़, और बिग माउथ दैट इज़ द कंपनी, इफ़ यू कैन गिव अ फॉलो। और अगर आप फॉलो नहीं कर सकते हैं तो एक अमेजिंग सा पिक्चर लीजिए और बिग माउथ और मुझे टैग कर दीजिए, इट विल बी वेरी स्वीट जेस्चर फ्रॉम योर साइड। आई विल गिव यू 10 seconds टू डू इट। चलो 15 दे देते हैं, 10 बहुत कम है एक्चुअली। ओके 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. जनरली मैं सबको 60 सेकंड्स देता हूँ, बट टाइम की कमी की वजह से 15 सेकंड करना पड़ा. चलो, तो यहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन सबको क्लियर है, सबको समझ में आ गया. डन. चलो बस, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. आई एम डन. बट किसी को चाहिए बोनस कि ख़त्म कर दे सेशन? टाइम वैसे भी ओवर हो गया है हमारा. ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन. भारत में कोई भी बोनस छोड़े पॉसिबल ही नहीं है ना? So, फटाफट करेंगे, ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. मैं 3 और आपको अमेजिंग सी टिप्स बताऊँगा ताकि आप और ऑडियंस लेके आ पाए अपने इवेंट. पहले हमने बताया कि इवेंट को ऐसे प्रमोट कर सकते हैं, कहाँ पर कर सकते हैं. मैंने आपको 3 सबसे अच्छी चीज़ें बताई. चीज़ें कम से कम 15, 20, 100 हो सकती है. मैंने आपको 3 सबसे इफेक्टिव चीज़ें बताई, ठीक है. अगर हमको और डीप में जानना है तो फिर मुझे और बहुत सारा टाइम लगेगा और बहुत सारे रिसर्च और मुझे आपको देना पड़ेगा सबको लाकर, ठीक है. टिप नंबर 1. We will have a detailed session again, Tarun. One very good session again, full time only session, nothing else. So क्या है, there are lot many questions which are arising, but we are not able to ask. So we will have one full session again. Pleasure. Go ahead. In this weekdays. ठीक है, कितने लोग एक्साइटेड हैं 3 टिप्स जानने के लिए? थम्स अप देंगे फटाफट मुझे. डबल थम्स अप चाहिए, डबल थम्स अप, डबल. चलो ग्रेट. टिप नंबर 1, क्रिएट द इल्यूजन ऑफ स्कार्सिटी. मैं किसी से पूछ नहीं रहा हूँ. जनरली मैं अगर सेशन लेता हूँ तो मैं सबसे पूछता हूँ और इंटरेक्टिव रखता हूँ, बट टाइम की कमी की वजह से मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको. इल्यूजन ऑफ स्कार्सिटी मतलब क्या होता है? स्कार्स मतलब क्या होता है? कम होता है, राइट? कम. डेजर्ट में क्या होता है? पानी कम होता है. इजी एग्जाम्पल. तो हमको स्कार्सिटी का इल्यूजन देना सामने वाले को, ठीक है. 100 सीट्स ओनली, लास्ट फ्यू टिकट्स, हैपनिंग टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफर. तो जनरली लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी लास्ट ईयर. अगर आप 30 डेज पहले बुक करते हैं टिकट तो 999 रुपीज़ की. 20 डेज पहले करते हैं तो 1999 रुपीज़ की. 10 डेज पहले करते हैं तो 2999 रुपीज़ की. और फाइनल डे आके करते हैं तो 5000 रुपये की. अमेजिंग टेक्निक है, राइट? जिसने पहला एक्शन लिया वो जीत गया, जिसने एंड में लिया भाई उसको तो 5000 रुपये भरने पड़ रहे हैं, जबकि सामने वाले ने 1000 ही भरे, ठीक है. तो हमको एक इल्यूजन देना सामने वाले को कि इवेंट में इतनी स्पेस नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें बुक हो चुकी है. अब पहले दिन पे ऐसा करेंगे क्या? कभी भी नहीं करेंगे. 10 दिन 15 दिन के बाद करेंगे, जब इवेंट में थोड़ा ट्रैक्शन आ चुका होगा. इमीडिएटली करेंगे तो लोग बोलेंगे यार ये तो झूठ बोल रहे हैं यार, पहले दिन पे कौन सा 100 बुकिंग हो जाती है. अनटिल अनलेस आप सचिन तेंदुलकर को ला रहे हो या फिर अरिजीत सिंह को ला रहे हो या फिर ऐसी हस्ती को ला रहे हो जो लोग डाई कर रहे हैं उनको मिलने के लिए, ठीक है. तो हम एक इल्यूजन ऑफ स्कार्सिटी देंगे हमारे मार्केटिंग कैंपेन्स के अंदर, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह पर, पैम्फलेट से लेकर सोशल मीडिया पर, हर जगह पर. नंबर 2, टारगेटेड एड्स. जैसे हमने बहुत बार इस चीज़ पे फोकस किया आज कि समझिए ये 5 उंगलियां, एक उंगली रिप्रेजेंट करती है 1 लाख लोगों को, ठीक है. आर यू ऑल विथ मी ऑन दिस? 1 फिंगर इक्वल्स टू 1 लाख पीपल. अभी इवेंट कर रहा हूँ मैं, XYZ इवेंट है मेरा जिसमें मैं एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, फ्यूचर ऑफ इवेंट्स, ठीक है. ये मेरा वो है टॉपिक. ये 5 लाख जो ऑडियंस है फेसबुक पे, इमेजिन करते हैं कि फेसबुक इंस्टाग्राम ऑनलाइन 5 लाख लोग ही हैं टोटल और है ही नहीं लोग. क्या 5 लाख लोग मेरा टारगेट है? नहीं ना. तो ये इंसान को किसी और में इंटरेस्ट होगा, इसको किसी और में होगा, इसको किसी और में होगा, पर ये 1.5-2 लाख लोग मेरा टारगेट होंगे. तो मैं सिर्फ इनको टारगेट करूँगा फेसबुक के बैकएंड के एड्स के थ्रू या फिर गूगल के एड्स के थ्रू. आप कभी सर्च करते हैं गूगल पर आपको ऐड आता है, आप फेसबुक में ऐड देखते हैं आपको स्पॉन्सर्ड एड्स आते रहते हैं सबको. क्यों आते हैं? क्योंकि आप उनके टारगेट ऑडियंस में हैं. हमारे जैसे लोग आपको टारगेट कर रहे हैं. संकेत को मैं टारगेट करूँगा बियर्डो से, बियर्ड अच्छी है उसकी काफ़ी, तो मेरे टारगेट ऑडियंस में होगा वो, अगर मैं बियर्डो प्रमोट कर रहा हूँ तो. अनिश को भी करूँगा, ठीक है. और अगर मैं एक शैम्पू या फिर एक स्किन क्रीम बेच रहा हूँ तो मैं भाभी को भी करूँगा, मैं प्राची को करूँगा, मैं रुक्मिनी को करूँगा, आधे मोनिका को करूँगा, आधे बॉयज़ को करूँगा ही नहीं क्योंकि उनको इतना मतलब होता नहीं है. तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम फोकस्ड टारगेटेड एड्स करेंगे. क्योंकि देखो सोशल मीडिया एड्स आर कैटलिस्ट. मैंने पोस्टर दिखा दिया आपको, इसको पहुँचाना भी तो सही लोगों तक. ये पहुँचाऊँगा ही नहीं तो फिर मतलब क्या? तो हम लोग एज, जेंडर, लोकेशन, इंटरेस्ट लेवल टारगेटिंग हम लोग फेसबुक में कर सकते हैं और सिमिलर टारगेटिंग हम लोग कर सकते हैं गूगल के ऊपर. वो एक बहुत बड़ा साइंस है, उसके लिए हमको बहुत सारा टाइम और चाहिए, वो भी हम लोग आज डिस्कस नहीं करेंगे. बट एड्स ज़रूर से ज़रूर करेंगे. एज लो एज 1000 रुपये हम लोग अगर एक दिन में स्पेंड करेंगे ना तो 5 से 6 हज़ार लोगों तक पहुँचेंगे. उसमें 400 से 500 लोग क्लिक करेंगे, उसमें 30 से 40 लोग हमको लीड भर के जाएंगे.
नाम नंबर देके जाएंगे, फिर उन्हीं लोगों को हम लोग रीटारगेट भी कर सकते हैं, और वो कैसे करते हैं वो बाद में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो टारगेटेड एड्स करेंगे। चलो लास्ट टिप के लिए कौन एक्साइटेड है? थम्स अप देंगे फटाफट। चलो, थैंक यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रन अ कैंपेन फॉर फ्री टिकट्स। हम लोग कहाँ पर बैठे हैं आज की तारीख में? सब लोग हम वर्चुअल नहीं, चेयर के अलावा और वर्चुअल के अलावा कहाँ बैठे हैं हम लोग? सब इंडिया में बैठे हैं। इंडिया में बैठे हैं। कितने लोगों को फ्री की चीज़ें पसंद है? सबको पसंद है ना। तो अगर हम लोग एक कैंपेन करते हैं जिसमें मैं आपको, अगर आप ये चीज़ जीतते हैं तो टॉप 10 विनर्स को मैं एक फ्री टिकट दूंगा, या फिर टॉप 1 लकी विनर को मैं उस आर्टिस्ट से मिलने के लिए दूंगा, या फिर मैं उनको एक गिफ्ट हैम्पर दूंगा अगर वो इवेंट पर अटेंड करने आएंगे तो, या फिर उसको +1 लाने के लिए दूंगा, अपने दोस्त को भी ला सकता है वो, प्लस 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 प्लस। इससे क्या होगा? मैं उनको बोलूँगा कम ऑन प्लीज़ फॉलो माई पेज टाइगर फ्रेंड, शेयर दिस ऑन योर स्टोरी, शेयर दिस ऑन योर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, वेर एवर पॉसिबल। फिर एक बैकएंड में सॉफ्टवेयर था जो ये सब चीज़ें चेक करता है कि हाँ 1 2 3 4 चीज़ें कर ली है, रैंडमली 10 विनर्स को आप उठा लो, फ्री टिकट्स उनके घर पे भेज दो। कोल्डप्ले ने भी किया था, हर इंसान ये चीज़ करता है, हम क्यों ना करें, राइट? फिर ये लोग पोस्ट भी डालेंगे, इवेंट का प्रमोशन कैसे हो रहा है? फ्री में हो रहा है। तो ये थे 3 और टिप्स। इसके अलावा कंक्लूजन क्या है, कोई बता सकता है मुझे? ए पहले आ गया यार, सॉरी, ऐसा होना चाहिए था वो। इट वॉज दिस, इट वॉज सपोज टू बी दिस, सो यू हैव टू एक्ट ऑन इट, ओके। ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है आज, ये सारी इन्फॉर्मेशन वेस्ट है अगर आप लोग इस पर एक्शन नहीं लेंगे। कितने लोग इस चीज़ को मानते हैं सही है कि गलत बोल रहा हूँ मैं? सही बोल रहा हूँ, राइट? इन्फॉर्मेशन आपको बहुत लोग देके जाते हैं, हर वीक आपके लिए इतने अमेजिंग आपके ऑर्गेनाइजर्स आपके लिए सेशन कराते हैं, उस पर अगर आप एक्ट ही नहीं करेंगे तो इन्फॉर्मेशन वेस्ट हो गई ना। यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, ख़त्म। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग इस पर एक्ट करेंगे, जितना भी कर पाएंगे उतना करेंगे। और परफेक्शन को क्या करेंगे? साइड में रखेंगे। अभी साइड में, अगर हम लोग खुद कर रहे हैं तो परफेक्शन को साइड में रख देंगे, कोने में। बहुत दूर से एक फुटबॉल लो, वो फुटबॉल का नाम है परफेक्शन, उसको जोर से लात मार दो दुनिया के बाहर सीधे। क्योंकि जितना हम लोग परफेक्शन की तरफ जाते हैं हम लोग चीज़ें कर ही नहीं पाते। कितने लोग मानते हैं ये चीज़? मानते हैं यार वो वीडियो परफेक्ट नहीं बना, यार वो पोस्टर परफेक्ट नहीं बन रहा है, वो फॉन्ट सही नहीं आ रहा है, कलर नहीं आ रहा है, बहुत बहाने मिलेंगे। Varun bhai, I am extremely sorry. This beautiful session has to come to an end. It is ending. 60 We were seconds. expecting it to close by 5:45. It 60 is seconds. 60 seconds. 60 Yeah. seconds मुझे सब लोग दे सकते हैं, 60 seconds मुझे दे सकते हैं सब लोग वापस से। चलो ठीक है, क्लोज कर देते हैं बस। This is what you should be doing all your life. Communicate, empower, inspire whoever you meet, wherever you go. And these are some things which I keep doing. So I have recently started teaching my own course apart from visiting faculty. On the left hand side, that is what he's saying. So I have been teaching this. The first batch is starting this Saturday. If anybody wants to join, more than welcome. Number 2 is a podcast which has a lot of free information. Go check it out. I'll share the links with the right people if they are okay to share it. Amazing. Lastly, you can see a lot of recorded sessions which I've done with a lot of industry leaders, from events to fashion to makeup. And let's keep in touch. Thank you so much. That was my time, guys. Thank you for being a patient audience. Thank you for having me over here. I hope you could get value from the session. Thank you, Varun bhai. It was really wonderful. And It was a wonderful session. We just request you to stop sharing. I'll do that. Yes. Prachi, it was a wonderful session from you also, but running out of time, we will have to be very crisp. Thank you, Tarun. Thank you very much. And whatever you're sharing will be shared in the group. So now we have one very quick announcement. This is regarding the change of structure of the meetings next week.